Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, every warrant of arrest issued by a court under Section 70 of CRPC, it shall be in writing and shall bear the seal of the court, signed by the presiding officer of such court, both A and B, or neither A nor B. सीआरपीसी की धारा 70 के तहत अदालत द्वारा जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट में होगा लेखन और न्यायालय की मुहर लगी होगी, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, दोनों ए और बी, या ना तो ए और ना ही बी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी. Section 70 of the Code of Criminal Procedure 1973 deals with form of warrant of arrest and duration. As per Section 70, subsection 1, every warrant of arrest issued by a court under CRPC shall be in writing, signed by the presiding officer of such court and shall bear the seal of the court. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 70 गिरफ्तारी वारंट के स्वरूप और अवधि से संबंधित है. धारा 70 उपधारा 1 के अनुसार सीआरपीसी के तहत किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट लिखित रूप में होगा, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुहर होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 330A was added to the Indian Constitution by 101st Constitutional Amendment, 102nd Constitutional Amendment, 106th Constitutional Amendment or none of the above. अनुच्छेद 330A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई भी नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 106वां संवैधानिक संशोधन. आर्टिकल 330A was added to the Indian Constitution by the Constitution 106th Amendment Act 2023. The Constitution 106th Amendment Act 2023 reserves 1/3 of all seats for women in Lok Sabha, state legislative assemblies, and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, including those reserved for SCs and STs. The reservation will be effective after the publication of the census conducted following the Act's commencement and endures for a 15-year period with a potential extension determined by parliamentary action. अनुच्छेद 330A को संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था. संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं. यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा तथा 15 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा, जिसका संभावित विस्तार संसदीय कार्यवाही द्वारा निर्धारित किया जाएगा. Next question is, which of the following section of the Indian Evidence Act deals with the evidentiary value of admissions? Section 17, Section 30, Section 31 or none of the above? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकृतियों के साक्ष्य मूल्य से संबंधित है? धारा 17, धारा 30, धारा 31 या इनमें से कोई भी नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 31. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 31. Section 31 of the Indian Evidence Act 1872 deals with the evidentiary value of admissions. According to this section, admissions are not conclusive proof of the matters admitted, but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 31 स्वीकृतियों के साक्ष्यात्मक मूल्य से संबंधित है. इस धारा के अनुसार स्वीकृतियां स्वीकृत मामलों का निर्णायक सबूत नहीं हैं, लेकिन वे इसके बाद निहित प्रावधानों के तहत रोक के रूप में कार्य कर सकते हैं. Next question is, what is the provision for compensation order under Domestic Violence Act 2005? Section 19, Section 21, Section 22 or none of the above? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुआवजा आदेश का क्या प्रावधान है? धारा 19, धारा 21, धारा 22 या इनमें से कोई भी नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 22. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 22. Recently, the Supreme Court gave its judgment on deciding compensation given to domestic violence victims. The court said that the compensation must be based off severity of violence. Section 22 provides for compensation order under Domestic Violence Act 2005.
It states that in addition to other reliefs as may be granted under this Act, the magistrate may, on an application being made by the aggrieved person, pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for the injuries, including mental torture and emotional distress, caused by the acts of domestic violence committed by that respondent. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा पीड़ितों को दिया जाने वाला मुआवजा तय करने पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मुआवजा हिंसा की गंभीरता के आधार पर होना चाहिए। धारा 22 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मुआवजा आदेश का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत दी जाने वाली अन्य राहतों के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर प्रतिवादी को उसके द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण हुई चोटों, जिनमें मानसिक यातना और भावनात्मक संकट भी शामिल हैं, के लिए प्रतिकर और हर्जाना देने का निर्देश देते हुए आदेश पारित कर सकता है। द लास्ट क्वेश्चन इज, if the donee dies before acceptance of gift, then the gift is voidable, the gift is void, the gift is valid, or the gift is converted into will. यदि उपहार स्वीकार करने से पहले प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उपहार निरस्तीकरण योग्य है, उपहार शून्य है, उपहार वैध है, या उपहार को वसीयत में परिवर्तित कर दिया जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द गिफ्ट इज वॉइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपहार शून्य है। Section 122 of the Transfer of Property Act 1882 defines the concept of a gift and lays down the conditions for a valid gift of immovable property. According to this section, a gift is a transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another person called the donee and accepted by or on behalf of the donee. If the donee dies before acceptance, the gift is void. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 उपहार की अवधारणा को परिभाषित करती है और अचल संपत्ति के वैध उपहार के लिए शर्तें बताती है। इस धारा के अनुसार एक उपहार कुछ मौजूदा चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण है जो दाता कहे जाने वाले एक व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से और बिना किसी प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है जिसे प्राप्तकर्ता कहा जाता है और प्राप्तकर्ता द्वारा या उसकी ओर से स्वीकार किया जाता है। यदि प्राप्तकर्ता की स्वीकृति से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपहार शून्य है। बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। The prescribed period of limitation for preferring an appeal under Section 28 of the Hindu Marriage Act is 30 days, 60 days, 90 days और 120 days. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत अपील करने के लिए सीमा की निर्धारित अवधि है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।